Good morning. Welcome to this classes online, and I am Dr. Jayadev Sahu. I am the HOD Commerce in Ravenshaw University, and now I have joined here to deliver my lectures on certain subjects which will be very useful to you, like accountancy and all. Yesterday you have already started this course with regulatory framework, and as you know, these are the advertisements by OPSC, and there are as many as 1375 posts for PGT, and I hope with this type of education definitely it will help you to get one post out of this. Now, the papers which you have got are that is your general English and general knowledge, first paper, and second paper you have got in commerce. You have got one paper that is consisting of 8 units. Out of 8 units, I shall tell you what are the things I shall teach you. This is business environment. I am not going to teach you. I am going to teach you financial accounting, then cost and management accounting, then business statistics and business mathematics. These are the 4 papers which I shall take up with you, and I hope I shall give you justice, and whenever there will be any doubt, you can ask me to the charts, and also I shall clear it. Okay, let us now start the topic, that is financial accounting. Coming to financial accounting, first of all, accounting is the language of business. What is language of business? First of all, we have to understand what is language. A language, let me tell you in Odia also. By the way, भाषा कौन? Language means भाषा. भाषाटा कौन? भाषा है भावर परिप्रकाश. भावर परिप्रकाश माने कौन? मु गोटे जिनस चाहूची तुमको कहवाकू, तुमको एक्सप्रेस करी, मु एक्सप्रेस करि पारे, एमते ठार रे भी करि पारे, माने 5 माने 2. एटा हला गोटे प्रकार भाव परिप्रकाश. आ गोटे हला लैंग्वेज. आमे कथा रे भी कहि परिबा. मु कहयाकू चाहूची 5 मु कहिबी. If I shall tell you 5, then it is 5. You have understood that there are 5 fingers. Then you understand that there are 5 fingers. So this is called language. Similarly, if you do not understand some language, you cannot make out of it anything. For example, if you know Telugu, it is a different thing. Otherwise, let me tell you one sentence in Telugu. Whether you are understanding or not, let me see. Okay. Roju ilaga koduka na toti matladtundu. So how many of you could understand this? Those who do not know the language of Telugu, definitely they will not understand. से सेंटेंस रो मीनिंग हैला मो संगरे एमती सबुदिन कथावार्ता टिके टिके हुआ. दैट इज कॉल्ड ओडिया. बट इन तेलुगु इट इज रोज इलागा कोदुका ना तोटी माटलाडुतुंडु. बट इन इंग्लिश आई कैन टेल यू दैट आई हैव टू टॉक टू यू एवरी डे a little bit like this. So these are all the things same. भाव टा होची गोटिए किंतु भाषा होची विभिन्न. Similarly, when we are going to business, business has got a language, and that language is nothing but this accounting. So accounting is the language of business. Okay, then accounting is as an information system. Accounting is an information system. Information system means what? Whatever is taking place inside the business,
there are many types of people, many people who are interested in knowing all these things. Okay, so who are they? They are called the users. There are external users, there are internal users, like our manager, like our staff who are working on it, our board of directors. All these are our internal users. And who are the external users? The government is external user, the public is external user, public is external user. Okay, so in this way there are many external users, the creditors, the shareholders, all these are external users. Now these users are interested to know about the business. Now when the business is doing some good or some bad or prosperous or nothing, so everything will be given to them. So that's why they are called an information system. It starts with collection of economic information. We can call it economic information, and communicates them to its users. Who are the users? I have already told you. All right. Then coming to the definition of financial accounting. Actually, there are 4 branches of accounting. I shall tell you later. But now the first one is financial accounting. The first accounting system was financial accounting. Now coming to financial accounting, this is definition. Once you know the definition, then I shall highlight the points which you can remember and understand. So financial accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. This is the best definition of accounting. Now let me explain it word by word. First is, financial accounting is the art of recording. Why it is an art? What is the difference between art and science? Science is what, that is that. That is called science. It cannot be changed. But in arts, when we are telling, we can develop. Suppose an artist is making an idol of Ganesh ji. Now he can make it still better. Some better artist can make it still better. There is scope. So that is called art. So this accounting is an art. Financial accounting is the art of recording. What type of art? Art of recording. We will have to jot down. We will have to write. हमको लिखिया को पड़िबो. जहाँ जहाँ इवेंट हबो, जहाँ जहाँ ट्रांजैक्शन हबो, इवेंट कौन ट्रांजैक्शन को तुमको कहबी कि ट्रांजैक्शन है जो आम दी जन पार्टी अच्छा जड़े टंका दौची जड़े टंकार भैल्यूटा दौची दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन. एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ बाय वन पार्टी टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन. दी जन पार्टी थे जड़े दौथो पैसा आउ जड़े पैसार मूल्य यहाँ है ट्रांजैक्शन. सो इवेंट है एनीथिंग व्हिच अफेक्ट्स आवर कंपनी और आवर बिजनेस बट डायरेक्टली इट इज नॉट ए ट्रांजैक्शन. सेटा इवेंट जमती किए जड़े लोक रिजाइन कला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज है. दीज आर ऑल इवेंट्स. ओके आमे गोटे बिल्डिंग किणवा को पैसा देले एडवांस दैट इज एन इवेंट. कि जो पैसा देदेले ट्रांजैक्शन हो गला ता पूर्व आमर जो एग्रीमेंटा सेटा है गोटे इवेंट. तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट. बट बोथ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स both are required in case of this, and we have to record. So recording, classifying. What is classifying? What will record? That will have to be classified. There are different types of accounts: personal account, real account, nominal account, like this, you know it. So it will have to be classified. Under what head what will be remaining. So that is called classifying. And summarizing. Summarizing means all the transactions will have to be summarized in one sheet. ताको हमें कहूचे ट्रायल balance. When we are preparing the trial balance, we are summarizing it. Then, in a significant manner, that means altu faltu jena tena prakarana kardele habani. We have to make it in a particular way. There is a particular way. That is called significant manner. In a significant manner, in terms of money transactions. Whenever money transaction is not there, if it cannot be expressed in terms of money, amar seta hei paribo nahi. In terms of money, if it is there, then only we will be able to write it, record it. Right means they are telling it recording. Okay. Then
Financial accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money transactions and events. Transaction and events I have already explained you. Then which are in part at least of a financial character. If it is not financial character, if it is not of financial character, then it has got no use in accounting. I think you are getting it. Then and interpreting the results thereof. This is most important. This is the advanced portion of that. This is the advanced portion of accounting. What is that? That is called interpreting the results thereof. Suppose we have prepared the trial balance, we have prepared the final accounts, we have found out that there is a profit, but after the profit determination also, what are the interpretations, further interpretations? Analysis will be there and interpretation will be there. So what is the further interpretation? That will be done from this. Suppose we have made a profit of 10 lakh rupees in a year. So why not 15 lakh? Where we have gone wrong? That is called interpretation. So when interpretation is there, then only we can know that after analysis the interpretation will be there, then we will interpret that these are the reasons why we could not make more profit, whereas our competitors are making more profit. So there needs that analysis and interpretation. So that is the advanced portion of accounting. So in this way we have concluded what is the definition. This is the best definition I have given you. This is given by the American Society of Accounting. So financial accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. Financial character I could not explain, just I am repeating it. Financial character means, suppose I shall tell you I like your personality. There is nothing financial in it. So this cannot be recorded by an accountant. Somebody else may record it, but the accountant cannot record it. In order to be recorded by the accountant, it has got at least one part should be in money. If I like you, you will tell me, okay, if you like me, you give me 100 rupees. If I give you 100 rupees, then it becomes a transaction. Then it becomes within the scope of accounting, otherwise not. So you have understood that, and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. I told you analysis and interpretation are the advanced portions, so you can understand this. I hope you have understood the definition of accounting. Next we will come to accounting principles. There must be some principles everywhere. Suppose we are driving our car. When we are driving our car, you know that I have to keep left. If you are in India, you are driving a car, you have to go in your left side. Okay. If you are in Switzerland, if you are in USA, then you have to drive right. Keep to the right. There is the principle. So according to the principle, if you do not go, what will be the disadvantage? There will be catastrophe. Not only disadvantage, there will be catastrophe, there will be accidents. So whenever we are doing accounting, or for that matter anything, there must be some principles behind it. So these principles nitigato bhavare ame taku grahana karichu. That is called principles. So say principles taku ame kon kariba na bhalo bhave padhiba. Principles taku first of all accounting principles vitare ame asya concepts ku. There are 8 concepts. I shall tell you one by one and what are their implications, what is the meaning, etc. ता विषय आमे पुंखानुपुख आलोचना करिबा. तापरे conventions, concepts, conventions, axioms, gap, accounting standards. ये सब जिनिस मिसिले ताको आमे कहबा accounting principles. Alright. So accounting principles includes all these things. Concepts are the basic things on which we will have to work. ता ऊपर आमे काम करिबा. आमे one by one सेटा पढिबा. The convention हला जहा चली आसीची. Please link the share for your further information. It will be helpful. Please link the share. Now coming to concepts, then conventions. Conventions are similar things, but the thing is
This is not evolved out of any research. These are the conventions which are going on. आगुरु चली आसीची जेमती कि तमे यदि टिके जानी थिबो डेबिट और क्रेडिट आमे डेबिट लिखुचु लेफ्ट रे क्रेडिट लिखुचु राइट हैंड साइड. सो डेबिट is kept in the left hand side of an account and credit in the right hand side of an account. This is a convention. Okay, आमे आम बापा माँ को गुरुजन मान को नमस्कार करुचे. आम बापा भी तांका बापा मान को नमस्कार करथिले, तांका बापा मान को आम जेजे बापा भी नमस्कार करथिले. एटा हला तमरा गोटे ट्रेडिशनल जिनिस जोटा कि कन्वेंशन कहा जाए. सो कन्वेंशन भी आम पढ़िबा. चारटा कन्वेंशन अछि. देन एक्सियम्स. गैप मीन्स जनरली अकाउंटिंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. आम ये सब डिटेल पढ़िबा. तापर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मु आसीबी कि नेक्स्ट आम जीवा कॉन्सेप्ट्स. कमिंग टू द कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट 8टा कॉन्सेप्ट अच्छी. आम ताको क्लियरली बुझिले अकाउंटेंट्स रे भलो करिवा. तबे कौन कौन कॉन्सेप्ट? फर्स्ट ला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कौन कहूची मु तुमको ओडिया रे भी कहबी इंग्लिश रे भी कहबी. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज दैट द बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द प्रोप्राइटर्स प्राइवेट थिंग्स. मु जदि आज गोटे बिजनेस करिया को गली, धर गोटे पान दुकान भी करिया को गली, मु 10,000 टंका नहीं गली गोटे पान दुकान करी. पान दुकान कला बेले मोर पान दुकान चलची. मो छोट झी आसी कहला बाबा 2टा चॉकलेट दियो. मुझे देदेली 2टा चॉकलेट. 2टा चॉकलेट दाम हूँ 50 टंका. से 50 टंका कौन है मोर? जदि मु हिसाब को न नेबी मु कहबी मोर लॉस है कि मोर प्रॉफिट कम है. किंतु प्रकृति में तुम प्रॉफिट कमेनी. तुम जब से लिखिदेव अलग भाव में जे एटा ड्रॉइंग से ही गला 50 टंका तेरे तुम प्रॉफिट ठीक आसो. तुम आउ हतोत्साहित हबार दरकार नहीं. सो ऑलवेज यू हैव टू ट्राई दैट योर बिजनेस is different and your personal things are different. So all the personal expenses will have to be written clearly and it has nothing to do with the business. So that is called business entity concept. Next we will come to money measurement concept. वर्तमान मु तुमको कहूली गोटे एग्जांपल मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट उपरे. यदि मनी द्वारा मेजरमेंट करी न हबो से जिनटा आमर अकाउंटिंग स्कोप रो बाहर को चल जो. आमर अकाउंटिंग वाला किसी करि परिबानी. आमे केमती मनी मेजरिंग कॉन्सेप्ट मन कर जने कहबो मु ए घरटा नेबी आउ ए घरटा काहे नेबी ना मु तोर झियो को बाहाई छि मु एटा को घरटा को नहीं गली यौतुक हिसाब रे. सेठी आ मनी रो इन्वॉल्वमेंट आसलानी किछि. सेटा हेई परियोनी अकाउंटिंग रे सेटा लेखा हेई परियोनी. किंतु जदि कह जे मु डाउरी नेबी 1 लाख टंका कि 5 लाख टंका घरटा तुम मत देदेल से दाम है 10 लाख टंका मु तुमको 5 लाख दे दी. ये सब मनी रे चलला. सो दिस कैन बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स. ऑफ कोर्स बिजनेस रे अकाउंट्स रे आसीबनी तार पर्सनल अकाउंट्स रे आसीबो. सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सेज दैट एनी ट्रांजैक्शन और इवेंट इफ नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी then it cannot get a place in accounting. So that is called money measurement concept. Now suppose we are starting the business, we purchase some raw materials, we purchase some furnitures, we purchase a machinery, we purchase a vehicle, we purchase a car. ये सब जिनस पे आमे पैसा दौचे. जिते बड़े पैसा दौचे सेटा किसी असुविधा हेबनी. सेटा हमर लिखिया को पड़ियो because money measurement concept says that whatever items are there in terms of money, if it can be expressed, converted, then it can get a place. All right. Then going concern concept. Going concern concept is a concept which says the business is not going to close down in the near future. In the foreseeable future, किछि दिन पई केते दिन पई हमरा एटा बंद होबा को जाउनी. जदि बंद होबा को जाउनी तेबे आमे बिजनेस रे लिखि परिबा ताको. मने कर आमे गोटे मेशिनरी किनिसे. मेशिनरीटार दाम है 10,000 टंका. 10,000 टंका मेशिनरीटा आम भावुचे कौन ये 10-15 वर्ष 20 वर्ष चलो. तेणु आम तापर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करुचे. 10,000 टंका 1,000 टंका ए वर्ष प्रोवाइड कले 9,000 रहा. तापर आउ 1,000 टंका कले 8,000 रहा. एमती 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष पर्यटन चलला. सो दैट इज कॉल्ड सॉरी going concern concept. That means we are assuming that this
particular machinery will be used by us for a long period. As long as the business is going on, it is also going on to work with us. So that is the idea, going concern concept. जदि ता न हुए तेबे असुविधा कौन हो? What are the limitations of this concept? Suppose आमे भाविबा आमर आउ 2 मास पर आमर दुकान बंद कर दवा, बिजनेस बंद कर दवा. जो बिजनेसटा बंद कर दवा, ये जो फर्निचरटा किणचे बा ये जो मेसिनरीटा किणचे यार वैल्यू केते रही जीवो? यार वैल्यू आमे बाहर कबाड़ी वाला को बिकिबा 1000 टंका रे बिकिबा. तो ये जिनसटा आम मन को आसीबा उचित नुहे. कहीं ना वी आर नॉट थिंकिंग दैट आवर बिजनेस इज गोइंग टू क्लोज डाउन इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड. इट इज गोइंग ऑन and when it will be closed down nobody knows. That's why we will always think positive, because the business is going on and on, then only it will be correct. से हिसाब रे देखले तमरो अकाउंटेंसी सब ठीक रहबो. नहले कोन हबो तुम डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड करछो सी भूल हबो, टंका केतरे बिकलो रीसेल वैल्यू सी भी भूल हबो, सब भूल हे जिवो. हम ताको रिप्लेस करियो चाहो सी भूल हे जिवो. तेनु ए सब जिंस को हमें अकाउंट को नबानी आम कह गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. नेक्स्ट विल बी कमिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. सपोज आम बिजनेस स्टार्ट कले, आम कह बिजनेस को आम 5 लाख टका बापा देइचंती, आम बिजनेस स्टार्ट कले ठीक अच्छी चलला, ये किसी दिन चलला. वर्षे पर बापा पचारे कि तोर प्रॉफिट केते हला बिजनेस रु? आम कहबा हम जहाँ गोटे हो कौन देखा आउ 3 लाख टका दियो, आउ जिनस आसबार अच्छी आउ 3 लाख टका देले. एम चलला 10 वर्ष 15 वर्ष पर्यंत आम किसी कहलेनी हिसाब कलेनी केते अच्छी केते प्रॉफिट है कि केते लॉस है. ताहले कौन है यूजलेस हो गला. शेषर प्रॉफिट तो होती भल कथा, जब प्रॉफिट न हो 15 वर्ष पर देखला तुम दिवालिया हो गलनी. तो सहीटा हूँ कौन ना से अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को आम अडॉप्ट करवा. वी हैव टू अडॉप्ट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट देन, और व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, व्हाई इट हैज बीन इवॉल्व्ड? इट हैज बीन इवॉल्व्ड एइथिपई करा हेछि पीरियड कॉन्सेप्ट जे प्रति वर्ष शेष रे आमे कोन करबा हमर रिजल्ट जानिबा, प्रॉफिट हैला ना लॉस हैला. कारण तापर ना जाइकरी आमे जानि परबा, तार इंटरप्रिटेशन करबा, एनालिसिस करबा जे काहे कि प्रॉफिट हैलानी, काहे कि लॉस हो गला. सेही लॉस एरियाटा को आमे छाड़ी दबा, भलो एरिया को आसीबा, प्रॉफिट एरिया को आसीबा. सो दैट इज द रीजन. तेनु पीरियडिक अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट सेज दैट. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट नथिले आमे बहुत जिनस कन्फ्यूज करिया, जानि परिबानी प्रॉफिट होउची कि लॉस होउची. अच्छा, नेक्स्ट आमे आसीबा कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कॉस्ट कॉन्सेप्ट सेज दैट द फिक्स्ड एसेट्स विल हैव टू बी शोन at their cost price, of course less depreciation up to date. आमे जदि किणिले 10,000 टंकार गोटे मेसिनरी, प्रथम वर्ष 1000 टंका गला, द्वितीय वर्ष धर 900 टंका गला, तापर वर्ष 800 टंका गला, एमती डेप्रिसिएशन काटी काटी आमे जीवा. दैट इज आल्सो कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस रे आमे 10,000 रे लिखिबा, बा सेकंड ईयर आमे 9,000 लिखिबा, थर्ड ईयर आमे 8,000 लिखिबा कि जहा लिखिबा. एटा हला हमर कॉस्ट कांसेप्ट. आमे भाबिबानी सॉरी जदि आमे किणीचे 10,000 टंका रे, किंतु तार बाजार रे दर हठात बढ़ीगला, हिगला केते 15,000 टंका. आमे कोन आम बैलेंस शीट रे लिखि दो से फिक्स्ड एसेट 15,000 रे आमे लिखि परिबानी. जेतिक रे किणी थिबा, जेतिक हमर कॉस्ट प्राइस सेतिक ही लिखिबा, ताठरो अधिका लिखि देले भूल. सेटा होची कॉस्ट कांसेप्ट. Cost concept says that always we have to maintain our books of accounts on the basis of the cost which we have paid in order to acquire a fixed asset. It is a cost concept. Okay. तापर हम आसीबा realization concept. Realization concept है कौन? When the sale proceeds have been realized, when the revenue has been realized, केते बेले आम पाखु पैसा आसिला, आमे जो जिनिस बिक्री कले ता पैसा आसिला केमती जानिबा. मु तुमको गोटे एग्जांपल देवी. सपोज वी हैव सोल्ड सम आर्टिकल्स ऑनलाइन. गोटे कस्टमर एनक्वायरी कला, गोटे कस्टमर ऑर्डर प्लेस कला, आम ताको जिनिस पठे देले. जिनिसर दाम मनकर 500 रुपीस. सी है आमर सेलर, आम हेले बायर. तो आम जो 500 रुपीस टा दबा, प्रथम आम कहे हाँ आम दबा, आम ऑर्डर प्लेस करदेले गोटे डेट रे. 4 दिन 5 दिन पर सी कहला जे ऑर्डर टा चलीगला.
तार 4-5 दिन पर ऑर्डर आसिक आम पाखे पहुँची गला तापरे बाय द टाइम वी गेव हिम मनी सी मनकर आउ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट गला ता पाखु पैसा पहुँचला बेलू आजिकल ऑनलाइन हो सागे सागे हो जाऊँगी ना मनकर डेरी है आउ 4 दिन पर पहुँचला एक्सक्यूज मी तो केते बळे प्रकृतर सेलटा हैला दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन कांसेप्ट सेल इज इफेक्टेड व्हेन गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड ना कि सी जो ऑर्डर कला ना कि जो आम पैसा पाइले ना कि जो जिनस पाई सारिक सी आमको पैसा पठेला से सबूटा हूँ पीरियड नुहे सेटा हूँ सेल माने अकाउंट सॉरी रियलाइजेशन है बोली कहि परियोनी रियलाइजेशन केबे हला रियलाइजेशन कांसेप्ट सेज दैट द रेवेन्यू acquires the revenue is coming to us when we have dispatched the goods आमे डिस्पैच करदेला परे गुड्स टा तापरे सी हो गला रियलाइजेशन आमर सेल हो गला बोली आम धरि नवा मनकर सी फेरई देला पुणी सी अलग ट्रांजैक्शन हो गला किंतु प्रथम रियलाइजेशन केबे हला ना जेते बेले आमे जिनिस पठेले जेते ऑर्डर रिसीव कले नुह से क्रेडिट रे भी परचेज करि थाउ आम ठारू क्रेडिट रे परचेज कले भी जेते बेले आमे जिनिस पठेले व्हेन वी हैव डिलीवर्ड द गुड्स for sale that is the period or that is the time for realization that is the realization concept okay then we will come to the next concept that is accrual concept while preparing the final accounts in order to know the profit or loss we are preparing the final accounts now suppose we are spending on rent monthly rent is 10,000 rupees suppose we are giving for example let us assume कि लास्ट मासर डिसेम्बर मासर पैसाटा आम देने प्रति मासरे आम 10,000 टका रेंट दवा कथा गोटे वर्ष रे 1,20,000 टका आम दवा कथा 12 मासरे 10,000 into 12 is equal to 1,20,000 दवा कथा किंतु आम देइछु केते आम 11 मासरे देइछु 1,10,000 तामने आरो 10,000 टा आम जेहेतु न देइछु आमे लेखिनु जदि न लेखिबा तेबे कौन हम ए वर्षर प्रॉफिट मनकर है 5 लाख आमे कह 5 लाख होता रेंट काटिदेला 1,10,000 काटिदेला बाकी रहा 3,90,000 3,90,000 किंतु प्रकृत में आमर प्रॉफिट 3,90,000 हम कि नो कहीं नुह ना जो 10,000 डिसेम्बर मासर रेंट आम देनु ताकू तो काली दबू so it should be taken into consideration this is called accrual concept how much expenses are really accrued till now that will have to be taken into consideration while calculating the profit for the year ए वर्षर प्रॉफिट निर्भुल प्रॉफिट बाहरी करने को हेले आमको जिते आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अच्छी ताकू काटिया पड़ो बा ताकू मिसेया पड़ो एक्सपेंस हिसाब से जिते गुड़ा इनकम अच्छी जदिव आम रिसीव करने कैश रे किंतु इनकम अच्छी ड्यू हो जाइए सेटा भी आम इनकम हिसाब से नवा नेले जाई आम ठीक पूरे जदि गला वर्षर किसी एक्सपेंस ए वर्ष दे देचे ताकू बाद देदेवा बिकज दैट डज नॉट रिलेट टू द करंट ईयर ए सब जिनस नेला परे तमे ठीक प्रॉफिटा पाइबो सो दैट इज कॉल्ड accrual concept then next one which is the most important one that is called matching concept matching the cost with the revenue of the concerned period जो वर्षर जेते आमे किणीचे तार कॉस्ट केते आमे खर्च करचे तार कॉस्ट केते आमर स्टाफ पैसा नहीं तार खर्च केते तांका दरमा केते ये सबू जिनस है कॉस्ट टोटल कॉस्ट विल हैव टू बी कंपेयर्ड विथ टोटल रेवेन्यू रेवेन्यू माने सेल्स रु क्रेडिट हो पारे सेल्स रु कैश हो पारे सेल्स अलग प्रकार भी सेल हो पारे जहाँ भी हो टोटल सेल्स आम नवा ओके ऑफ कोर्स क्लोजिंग स्टॉक विल हैव टू बी एडेड टू द net sales value and then we'll be getting the difference and that difference will be the profit that is called matching concept so when we are going to match the cost with the revenue this is the work of the matching concept clear जदि एति की बुझी पारला concept ऊपर तो बहुत
फंडामेंटल्स तुम क्लीयर हो। सो दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर द बेसिक्स, बेसिक पोस्टुलेट्स, बेसिक असम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग। ये सब जिनस को हमको जानिया पड़ो। देन विल कम टू conventions. What is convention? Convention, whatever is going on from periods, from previous so many years, that is called convention. For example, I told you that we are writing in the accounts, in the left hand side we are writing debit and in the right hand side we are writing credit, because it is going on. It is not compulsory that you have to write all the debit items in the debit and all the, I mean in the left, and all the credit items in the right. It is not compulsory, because in USA they do not write it, but here we are traditionally in English, I mean in Britain they write it like this. This is our traditional form. So that is called a convention. Similarly, if I shall tell you we put on our pants below the waist and we put on our shirts above the belt. So this is a convention. We cannot reverse it. So this is a convention. So coming to the accounting conventions, we will be having first of all consistency. What is consistency? Consistency says that the thing which we are doing, that should be carried on consistently. जो मनकर डेप्रिसिएशन आम करुचे, डेप्रिसिएशन 9 प्रकार डेप्रिसिएशन अच्छी। मनकर आम करुचे स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड मान कौन ना प्रति वर्ष मनकर लाख टंका उपर 10% आम करवा। प्रथम वर्ष 10,000 करवा, द्वितीय वर्ष 10,000 करवा, तृतीय वर्ष 10,000 करवा, सब वर्ष डेप्रिसिएशन 10,000 होगी चलो। हेले आमर जो प्रॉफिटटा करवा फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर रे सेटा कंसिस्टेंट रहबो, ताटा ठीक रहबो, बिकॉज आम किसी एब्सर्ड जिनिस लिखुनी। धर आउ गोटे कंपनी कौन करुच्ची, सी लिखुची रिटन डाउन वैल्यू मेथड रे लक्ष टंका उपर प्रथम वर्ष 10,000, द्वितीय वर्ष 9,000, तृतीय वर्ष 8,100, एमती मनकर कमी 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 जाउची तार। से ता अनुसार मेंटेन करुच्ची, ता प्रॉफिट भी तार ठीक। किंतु आमे जदि गोटे वर्ष करवा स्ट्रेट लाइन मेथड रे, आ गोटे वर्ष करवा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रे, आ गोटे की प्रकार मेथड रे करवा, एमती जदि करवा तेबे कौन हम ना प्रॉफिट जोटा आम देखेबा सेटा ठीक प्रॉफिट हबनी, बिकॉज इट इज इनकनसिस्टेंट। इनकनसिस्टेंट हवा कथा नहीं। whatever practices, whatever accounting practices we are putting on, we are doing, that should be repeated. सेटा प्रति वर्ष आमे धरिकी चलिया को पड़िबो, जहाले गोटे प्रकार जिनस। ठीक अछि। नेक्स्ट आसला कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव एटीट्यूड। व्हाट इज कंजर्वेटिव? द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज, फॉर कंजर्वेटिज्म इज cost or market price whichever is less is the valuation of closing stock. आम मनकर 100टा पेटी किनी बिजनेस करने को, गोटा को आम देचे के 1000 टंका लेखे, तो 1 लाख रुपीज आम किणीचे। जितेबाला आम सेल कले मनकर सबुड़ा 1,500 हिसाब से बिक्री हो गला, किंतु से 10टा यूनिट रही जाइए। जो 10टा यूनिट रही जाइए तार भाल्युएसनटा आम केमती करवा, तार भाल्युएसनटा आम जब 1,500 टंका बिक्री करुचे बोली 15,000 देखेबा, सी गोटे प्रकार प्रॉफिट आसो। जदि आम कहवा नाई सेल कला बेले कौन हम किए जानी, मार्केट कंडीशन कौन हम किए जानी, तेणु आम कौन करवा ना कॉस्ट प्राइस को देखा। कॉस्ट प्राइस केते 1000 टंका, 10टा यूनिट को केते हला 10 into 1000 इज इक्वल टू 10,000। तेणु आम देखा क्लोजिंग स्टॉकटा केते ना 10 यूनिट्स 10,000 रुपीज, आम देखेबानी 15,000। कहीं ना ता प्रिंसिपल कहूँ कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लेस। कॉस्ट है आमर 10,000, market price is 15,000, so which is less? 10,000. So we have to show the closing stock at 10,000. बुझीगला? तापरे आमे आसीबा materiality. What is materiality concept? Materiality concept says that whenever we are writing anything, whenever we are recording anything, whenever a transaction is there, whether it is material or not, जे कौन सी जिनस घटुची आमे सब गुड़ा लिखि परिबानी। सबुड़ा लिखले कौन हम फाड़ पूरण हो आमर जगह रही कन्फ्यूजिंग हम। फॉर एग्जांपल आमे जिते आसुचे घर बाहर कि कॉलेज रु घर को फेरुचे, आम आगे गोटे भिकारी देखाला, भिकारी को आम 1 टंका देले,
तो गोटे टंका जदि मु देली मु लिखि रखिया दरकार नाही कारण टंकाटे मो पे मैटर करूनी किंतु मनकर तमे घर आणिके आसुच केते 50 टंका तुम पॉकेट मनी 50 टंका रू तुम यदि टंकाटे देदेल तेरे घरे जाकि तुमको एक्सप्लेनेशन देवा पड़ो से आउ टंकाटे हिसाब कुआड़े गला तुम पे मटेरियल हो गला सो इफ इट इज मटेरियल यू कीप इट इन अकाउंट्स इफ इट इज नॉट मटेरियल देयर इज नो नीड टू कीप इट मिसलेनियस करके लिखिदेवा शेष सो आउ गोटे जिन यहाँ गोटे कंपेरेटिव टर्म मुझे कहली जड़े भद्रलोक गले गोटे मंदिर को मंदिर बाहर भिकारी बस टंका टंका कर 5 जन को 5 टंका देले ठीक अच्छे सी जानले जे मु 100 टंका धरिक आसली 5 टंका देली किंतु जो अमिताभ बच्चन जाती सिद्धि विनायक टेम्पल को से प्रति भिकारी को 500 रुपीज लेखे देके आसते 100 था 500 इंटू 100 से देके आसवे से मटेरियल नुह कारण ही इज अर्निंग इन क्रोर्स सिमिलरली जदि कौन सी इंडस्ट्रियलिस्ट जीवे सी भी सेमती खर्च करेंगे से मटेरियल ही नुह सो व्हाट इज मटेरियल डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड डिपेंड्स ऑन द पर्सन कंसर्न से लोक उपर निर्भर करे तमें जदि 5 टंका खर्च कर मुझे 10 टंका खर्च करुच्ची आम लिखा कि जदि टंकाटे मु खर्च कर कि तुम 50 पैसा खर्च कर तुम लिखा जरूरी नुह बिकॉज इट इज नॉट मटेरियल सो दैट इज व्हाट द मटेरियलिटी convention says. Then full disclosure. Full disclosure means whatever items are there, nothing should be concealed. Everything जहाँ भी घटुची आमर बिजनेस रे सबू जिनस लेखा जीवा दरकार अकाउंटेंसी स्कोप को जहाँ आसूची सबू जिनस क्लीयरली लिखा दरकार आमे विंडो ड्रेसिंग करी किछि लिखा उचित नुहे मनकर आम पाखे अच्छी डेट डेट मान कौन जो मैंने सब आम ठारू पैसा आम ठू बाकी रे जिनस नहीं क्रेडिट रे जिनस नहीं आमे कौन करवा क्रेडिट रे मनकर ए वर्ष आमर 1 लाख टंकार जिनस बिक्री होती आम 1 लाख टंका लिखा कथा क्रेडिट माने आमर डेटर्स इज एन एसेट ताको आम लिखा 1 लाख टंका किंतु आम जदि जानुचे से गोटे लोक मरी जाइए जी कि आउ पैसा तार दबार ना बा से इनसल्वेंट डिक्लेयर हो जाइए सी पैसा दे पारिबनी कोर्ट कहूँ से ही हैज बीन डिक्लेयर्ड इनसल्वेंट यू कैनॉट कंपेल हिम टू पे एनीथिंग दे पारिबानी से दिवालिया हो जाइए तो ता ऊपर जदि 15,000 टंका थिला तेबे आमर डेटर्सटा 85,000 हम ना कि 1 लाख टंका हम कहीं ना से 1 लाख टंकार आम जानूचे आम तो जानूचे ना जे से लोक दिवालिया हो जाइए से लोक मरी जाइए दबनी पैसा आम जदि 1 लाख लिखा तेज फुल डिस्क्लोजर हैलानी आम 85,000 लिखा बैड डेट लिखा 15,000 यहाँ है फुल डिस्क्लोजर तो आम कौन सी जिनस लुचेक रखा ना गोटे आम रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेंट गोटे एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी होची सबू जिनस डिस्क्लोज करिवो करेक्टली ट्रूली दैट इज कॉल्ड फुल डिस्क्लोजर आमे कॉन्सेप्ट पढ़ले आमे कन्वेंशंस पढ़ले तापर आसीबो एक्सियम्स व्हाट इज एक्सियम ए स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दैट कैन नॉट बी क्वेश्चनड और चैलेंज्ड फॉर एग्जांपल सन राइजेस इन द ईस्ट सन राइजेस इन द ईस्ट ठीक अच्छे ताकू किए चैलेंज कर कि जड़े कह ना दक्षिण रू आज सूर्य उदय होती आम मानिबा मानी सो दैट इज कॉल्ड सन राइजेस इन द ईस्ट इज एन एक्सियम दीज एक्सियम्स फॉर्म द बेसिस फॉर ऑल फर्दर वर्ड्स मुझे तुमको कहूँ यार यूटिलिटी कौन व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस एक्सियम्स if we tell that some goods are sold at a profit of 10% and we do not obey it, we do not give it its honor नाई मो एमती हो पारिबनी 10% हो पारिबनी गोटे बिजनेस जड़े कर 10% प्रॉफिट कौन करें आम चैलेंज करवा चैलेंज करें सो सिमिलरली जड़े मन बिजनेसमैन कह जो इनकम टैक्स वाला आसवे बिजनेसमैन कह मोर गोटे कार तार डेप्रिसिएशन 15% से कहे ना ना डेप्रिसिएशन 15% किसी दिजानी
एमती कौन कहींपर कारण गोटे कार अच्छी माने तुम डेप्रिसिएशन हम ही हम तो इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड तो केते डेप्रिसिएशन हम सेटा ऊपर तुम विचार कर पार तो दीज आर कॉल्ड एक्सियम्स देन गैप generally accepted accounting principles so generally accepted accounting principles states that there are some principles which are used in accounting or by the accountants all over the world that is generally accepted everybody will accept it one who is an accountant he will not complain anywhere that this person has given something like depreciation. I do not know what is that depreciation. Nobody will say because they know that this is one of the generally accepted accounting principles of accounting. Similarly, the principles, let me explain this one. The principles which constitute the ground rule for financial reporting. You know, when we are recording, classifying, summarizing the transactions, then we are finding out the profit, then interpreting how the profit can be increased, what are the loopholes, आमे कहीं की profit ठीक कर पाइलेन ये सब जानला परे तापर आसीबो रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग कोन रिपोर्टिंग द एंड रिजल्ट ऑफ दिस आमे जो अकाउंट्स करूचे ताको आमे रिपोर्ट करिवा कहा को रिपोर्ट करिवा टू द हायर अथॉरिटीज टू द मैनेजिंग डायरेक्टर और टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमको ताको जणेबार अछि आमको जनइले से कौन करेंगे तांकर डिसीजन नवाक सुविधा हम जे नेक्स्ट ईयर को आमर ए लाइन रे प्रॉफिट ए रे बेसी होची प्रॉफिट बी रे कम होची तेणु आम ए रे एक्सटेंशन करवा बी को आस्ते आस्ते लोप करदे ये जो डिसीजनटा से नेबे का द्वारा नेबे आमे जो डाटा तांकु दबा से नेबे so this is called reporting that is called reporting financial reporting so the principles which constitute the ground rule means basic rule for financial reporting. All the financial data will have to be reported to the higher authorities and whatever ground rule is there that is generally accepted and generally accepted accounting principles. These are the guidelines to deal with I am coming to accounting standards then. What is accounting standards? Accounting standards last item amra hala accounting standards. So accounting standards refers to the guidelines to deal with specific cases. These are formed by the accounting bodies of a country that is ICAI in India. At present there are 41 accounting standards. Rules से गला, basic principles से गला, conventions से गला, concepts से गला, general accounting principles से गला, ता परे भी बेले बेले एमती जिनस आसीबो जोटा को फेस करबा को आमको आहुरी रूल तैयारी करिया पड़िबो सेगुडा हला accounting standards. So from time to time these accounting standards are prepared by whom? By the accounting bodies, the accounting bodies of a country. Accounting bodies of a country हमरो इंडिया रे कुहाउची ICAI को ICAI के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. So Institute of Chartered Accountants of India will have to form certain standards, accounting standards. Accounting standard पुणी से हायर अथॉरिटी ताको ने अप्रूव करिवे तापर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अछि से माने कंसीडर करिवे से माने अप्रूव करिवे ए सब अप्रूव कर साला परे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होबो. Accounting standard will solve all the situations and this will go on changing. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जोटा गला वर्ष थिला ए वर्षर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुए तो किछि उठी जाइछि किछि नुआ आछि. हाउएवर वर्तमान सुधा 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अछि. वर्तमान आम आसवा हिस्ट्री को. अकाउंटेंसी केबे आरंभ होला? You must have heard the name of चाणक्य. चंद्रगुप्त मौर्य पाखरे से थिले जने मंत्री तांकर अर्थमंत्री थिले से इन इंडिया बिफोर 23 सेंचुरीज माने केमती कैलकुलेशन करवा हमर 23 सेंचुरीज
एबे आम कौ सेंचुरी अच्छे 21st सेंचुरी अच्छे वी आर इन 21st सेंचुरी 21st रू 23 डिडक्ट कले -2 माने 2 सेंचुरीज बिफोर क्राइस्ट बीसी तेणु सेतेबेले सेटा तैयारी हेतिला प्रथम जेतेबेले हेतिला इन इंडिया हेतिला अर्थशास्त्र चाणक्य हैज रिटन वन बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य चाणक्यंकर अन्य नाम है कौटिल्य तांकर चैप्टर है से कौथरे अकाउंटेंसी विषय लिखिथिले अकाउंटेंसी विषय से लिखिथिले जो चैप्टर है द बिजनेस ऑफ कीपिंग अप अकाउंट्स इन द ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट्स मानकर ऑफिस रे जेमती सब बही रखा जाए बही माने अकाउंट्स बही माने जो आमर किताब जोटा आम कहते सेटा नुह बही रेफर्स टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स हाउ इट इज मेंटेन्ड इट हैज बीन गिवन इन अर्थशास्त्र किंतु आमर जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आसी द मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग दैट इज it owes its existence to Luco Pacioli के कहते फादर ऑफ अकाउंटेंसी है लुको पासिओली से हेले 1494 at Venice in Italy in 1494 Italy Venice is the capital of Italy and at that time it was written by लुको पासिओली तो लुको पासिओली प्रथम लिखिथिले कौन ना डबल एंट्री बुक कीपिंग से डबल एंट्री बुक कीपिंग रो एडवांस स्टेज है अकाउंटेंसी तो अकाउंटेंसी से ओज इट्स ओन एग्जिस्टेंस टू लुको पासिओली द मॉडर्न अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और द मॉडर्न अकाउंटिंग हैज टेकन बर्थ बाय लुको पासिओली एट वेनिस इन इटाली तो दिस इज द हिस्ट्री तापर बहुत इम्प्रूवमेंट है कि आजिकार डेट रे आमे पहुंचे नाउ विल कम टू द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग तो फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग concerned with historical, custodial and stewardship aspects of external reporting. Its end products are profit and loss account and balance sheet. Let me explain it. फाइनेंशियल अकाउंटिंग तापर अच्छी कॉस्ट अकाउंटिंग तापर मैनेजमेंट अकाउंटिंग तापर सोशल अकाउंटिंग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड नेशनल अकाउंटिंग लेट अस क्लियर ऑल दीज थिंग्स वन मिनट Coming to the branches of accounting, financial accounting is the first thing. Why we have written financial accounting first? Because it came first. Financial accounting is the most, the oldest form of accounting. Financial accounting it is concerned with historical. What is historical? जे पर्यंत गोटे ट्रांजैक्शन टेक प्लेस न करिछि आमे किछि लेखिबार नै हिस्टोरिकल हे गेला नै प्रथमे ट्रांजैक्शन टेक प्लेस कला ना प्रथमे आमे लेखिले प्रथमे ट्रांजैक्शन टेक प्लेस कला ओनली आफ्टर ए ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस वी विल record it. That's why it is called historical. All the historical things will be written. Then custodial. Custodial means गोटे बड़ बिजनेसमैन माने उनका पाखरे जड़े जड़े गुमास्ता था से गुमास्ता काम है सी सब हिसाब रखिए लाभ क्षति सी बाहर करेंगे पछरे किंतु आगे हिसाबटा लिखिए से कहती कस्टोडियल एंड स्टुअर्डशिप. स्टुअर्डशिप मीन्स गोटे प्रकार सर्विस. वी आर गिविंग ए सर्विस टू आवर प्रोप्राइटर और द
managers. So that's why it is called stewardship. Stewardship, you must have heard the name of stewards in case of your big restaurants. Those boys, we call it, actually the term is steward. They are the stewards. So why they are there? They are to give us some service. हमको खाइबा को आनिक देबे, हमको पीवा को आनिक देबे, सफा सफी करिवे, ए सब जिनिस हला stewardship. Stewardship means service holders. So concerned with historical, custodial and stewardship aspects of external reporting. What is internal reporting? What is external reporting? External reporting जेतेबेले आमे करूचे तार अर्थ होची आमे अन्य लोक बाहर लोकंक पई जो सेवाटा करूचे जो कामटा करूचे दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग. के सब सेमती लोक के अछंती जे मनकर शेयर होल्डर मे बी द ओनर बट ही इज एक्सटर्नल. ओके देन कारण तांकर मैनेजमेंट ऊपर किछि करिवार नाही, जहाँ मैनेजमेंट करिवो से थ्रू जहाँ प्रॉफिट हो से नेबे. सिमिलरली आउटसाइडर्स आउ के गले मनकर जनरल पब्लिक, आवर कस्टमर्स, द गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, एमाने सब हेले एक्सटर्नल. तांकू आमे जणेवा को पड़िबो जे आमे खूब बेसी गुडे प्रॉफिट करूनु. आमे यदि कहबा 100 टंकार जिनिस आनि के आमे लाख टंकार बिक्री कले ताले सेटा विश्वास योग्य तो हबनी. तापर जदि भी प्रकृति रे करू थाए सेटा अनएथिकल भी हबो. मु जदि कलकत्ता रु गोटे मनकर गोटे ड्रेस आनली जार दाम हो 2000 रुपीस, मुझे बिकिबी केते कटक रे 2500 बिकिबी कि 3000 बिकिबी. मुझे कहबी ना 20000 बिकिबी तार मु बहुत फायदा नहीं नौ, बहुत प्रॉफिट नहीं जाऊँ, मु लोक को शोषण करुच्ची, सेटा अनएथिकल हो गला. से एक्सटर्नल लोक जानिबा दरकार प्रकृति रे तमर प्रॉफिट केते. इट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन, बैलेंस शीट कौन, आम डिटेल पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. किंतु तुमको वर्तमान पे मु कहि दउची व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आम जो बिजनेस करूचे आमर वर्ष शेष में प्रॉफिट है कि लॉस है जानापी जो तैयारी करुचे गोटे स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रे विभिन्न प्रकार अच्छे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, से विषय आम डिटेल पछरे पढ़ा. किंतु वर्तमान पे आम एतिकी पढ़ा जे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द एम, इज द एंड प्रोडक्ट. एंड प्रोडक्ट माने जोटा आमको लास्ट रे दरकार पड़े, जो थी आम एते अकाउंट्स लिखुचे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. बैलेंस शीट है गोटे पोजीशन स्टेटमेंट. आम पाखे कौन कौन एसेट अच्छी, कौन कौन लायबिलिटी अच्छी, सेटा है आमर कौन ना बैलेंस शीट. बैलेंस शीट रे तुम देखि दुई पटे, गोटे पटे अच्छी लायबिलिटीज एंड कैपिटल, गोटे पटे अच्छी एसेट्स. लायबिलिटीज रे कौन कौन रहिबो, लायबिलिटी हमर सब एक्सटर्नल. लायबिलिटी डेफिनिशन अच्छी. लायबिलिटी डेफिनिशन कौन, लायबिलिटी डेफिनिशन है अमाउंट ओइंग टू आउटसाइडर्स, और कैपिटल अमाउंट ओइंग टू द प्रोप्राइटर. Whatever money the proprietor has invested in the business or the business has taken it from the proprietor, that is called capital. In contrast to that, the liability is the money which has been taken from outsiders. बाहर लोगों को जो पैसा आनिक आम इन्वेस्ट करके आम बिजनेसटा चलाऊे दैट इज कॉल्ड ए लायबिलिटी. लायबिलिटी भितर कौन कौन सब आसो, लायबिलिटी भितर आसो क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स माने कौन, जो लोक मैंने आमको क्रेडिट रे जिनिस देइचंती. द पर्सन्स एंड द फार्म्स फ्रॉम हुम वी हैव परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स. गुड्स रो भी संज्ञाटा जानिया उचित. गुड्स माने कौन, गुड्स रेफर्स टू ओनली दोज गुड्स इन व्हिच द फार्म डील्स. आमे जदि गोटे बही दुकानी, बही है आम का गुड्स. आमे जदि गोटे फर्निचर आलमीरा किणले सेटा गुड्स भितर जीवनी. जदि आमे गोटे अर्नामेंट किणले सेटा गुड्स भितर जीवनी. किंतु जदि फर्निचर दुकानी कथा कहवा आमे गोटे फर्निचर दुकानी पे फर्निचरटा कौन गुड्स, किंतु आम पे गुड्स नुहे, दैट इज एन एसेट, दैट इज ए फिक्स्ड एसेट. सिमिलरली आमे जीवा तापरे हाँ लायबिलिटी कथा कहती. लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, तापरे बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स टेकन फ्रॉम द बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एगुड़ा है सब तुम कौन लायबिलिटी. सो आफ्टर लायबिलिटी
will come to assets. Assets, there are different types of assets. Number one, fixed assets. Fixed assets are those assets which will remain fixed with us for a number of years, for a longer period of time. That is called fixed assets. Okay. So, fixed assets will include land and building, plant and machinery, then furnitures and fixtures, then motor vehicles, then loose tools. Land and building बुझी होथिबो, plant and machinery, by using the plant and machinery will be producing goods. Then furnitures and fixtures, furnitures तमरो टेबल चेयर अलमीरा ये सब है फर्निचर. फिक्सचर्स कौन ट्यूबलाइट है, फैन है, एसी है, कूलर है, ये सब कहते फिक्सचर्स. तो फर्निचर्स एंड फिक्सचर्स. देन मोटर व्हीकल्स, आमर कार रखीचे कि ट्रक रखीचे से मोटर व्हीकल्स. देन लूज टूल्स. लूज टूल्स मीन्स योर स्क्रू ड्राइवर, छोट छोट जिन सब प्लास, screwdriver, then spanner, then there are many small kits, small tools which will be required. So, that also are kept here. So, these are called fixed assets. After fixed assets, we will have current assets. The definition of current assets is that हम तो current asset बोली कहीं कहू ना गोटे वर्ष भितर से ता फॉर्म चेंज कर दबो. आमे current asset भितर कौन कौन आसियो मु तुमको कहि देबी. फॉर एग्जांपल सपोज कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, याकू भी कहती लिक्विड एसेट्स. लिक्विड एसेट रो माने कौन? लिक्विड एसेट माने which is already in the form of cash or can be very easily converted to cash. So, these are the items of liquid assets, and liquid asset is a part of current assets. या परे आमे जिबा से करेंट एसेट्स अंडर रे हमर आसीबा लिक्विड एसेट, करेंट एसेट्स अलग आइटम सब है जोटा लिक्विड नुह. दैट विल बी योर डेटर्स, देन बिल्स रिसीवेबल, then your stock. These are all current assets but not liquid,
बिकज इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली एत सहज या चेंज कर मन स्टॉक आम पाखे रही जाइए किसी स्टॉकटा कौन जिते चाहिए से बिक्री करदे पार कस्टमर आसिले तो बिक्री करवा तेणु टाइम लगे किंतु कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिक्विड एसेट ये सागे सागे आम पैसा दे पार आम पाखे कैश थे ना चेकटे लिखिदे बैंक रु टंका आसीगला तो दैट इज कॉल्ड लिक्विड एसेट दीज आर नॉन लिक्विड एसेट्स तो या भितर आसला स्टॉक स्टॉक रेफर्स टू द क्लोजिंग स्टॉक आम जो थे डील करुचे जो जिनस से जिनस आमर क्लोजिंग स्टॉक केते रही जाइए बिक्री न होकर केते रही जाइए दैट इज कॉल्ड योर स्टॉक ओके तो कहते क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड भी कहते स्टॉक इन ट्रेड ऑलराइट डेटर्स बिल्स रिसीवेबल स्टॉक एंड ट्रेड कमिंग टू डेटर्स कौन डेटर्स रेफर्स टू द सन्ड्री डेटर्स टोटल डेटर्स मीन्स those persons or firms who have taken goods on credit from us आम ठारू बाकी रे जिनस नहीं पैसा एपर्यंत दे ना से भी आमर आसेट से कि प्रकार आसेट ना करेन्ट आसेट कहीं ना वर्ष आरंभ जी थिला वर्ष शेष से डेटर्स रही किसी माने अच्छी कि किसी पैसा दे दे थाई पारती आहरी कई जिनस नहीं क्रेडिट रे नहीं पारि थांते जाफल कि बढ़ीगला आहरी तो यही जिनसटा को कहते डेटर्स तापर बिल्स रिसीवेबल कौन बिल्स रिसीवेबल गोटे बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन गोटे अच्छी तुमको मुझे पढ़ेबी मैथमेटिक्स बिजनेस मैथमेटिक्स किंतु वर्तमान पे कहया कथा जदि आम गोटे बिजनेस करिचे गोटे दुकान करिचे आम थ्रू किए जिनिस किणिकी नेला मनकर से सब बेले आम ठू जिनिस किणिकी नौ हठात तापर देखला पैसा ना टंका ना सफिशिएंट टंका ना तेज आम दबा ना नहीं आम दबा क्रेडिट रे दबा क्रेडिट रे देले से डेटर हो किंतु जदि आमे टिके संदेह करवा कह से दब न दब आम कह तू लेखिकी दे सेठू सी लिख आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट ₹1 लाख आफ्टर 3 months कि आफ्टर 4 months से लिखला ये जो लिखिदेला सेटा हो गला बिल्स रिसीवेबल दैट इज ए प्रोमिसरी नोट बट प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज बोथ आर कॉल्ड bills receivable for us and bills payable for him it is bills payable माने liability है तार आम पे bills receivable माने asset है गला कारण आम तापर टंका पाइबा इन फ्यूचर विल बी गेटिंग दैट आफ्टर 3 months आम कहवा तो जिनस ने तो कौन डॉक्यूमेंट ने आमको पैसा दे आमको दब तो यहाँ बिल्स रिसीवेबल सो बिल्स रिसीवेबल इज ऑल्सो ए करेन्ट एसेट तो आम जानले गोटे है करेन्ट एसेट गोटे है फिक्स्ड एसेट आ गोटे हूँ टांजिबल एसेट नंबर 3 इंटांजिबल एसेट इंटांजिबल एसेट्स भितर आमर आसो गुडविल ट्रेडमार्क कॉपीराइट गुडविल ट्रेडमार्क कॉपीराइट एंड पेटेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गुडविल गुडविल रेफर्स टू द गुड नेम गुड रेपुटेशन ऑफ ए फार्म सपोज आमे जीवा गोटे ड्रेस किणवा को आम जा कहवा कौन भैन हेउसेन राम गोटे दियो कि ना पीटर इंग्लैंड दियो आम कहीं कहे कि आम जीवा जोता किणवा को आम कह लिबर्टी नवा कि बाटार नवा कि आदिदास नवा कहीं आम कहे ना से गुडविल अच्छी दे हाव गॉट द गुडविल तुम देख से गुडविल पे भी से बेसी पैसा नौ तो गुडविल इज दैट यूजफुल व्हेन I purchase goods from the footpath, it may be 500 rupees. But the same thing if I shall purchase from a leading garment supplier, then like all these names I told you, suppose Louis Phillips or Van Heusen
एमती जब दुकान में आनी मोर 2500 टका पड़ पारे सेटा कहीं गुडविल अच्छी बिकॉज ऑफ देयर गुडविल दे चार्ज मोर मनी so thus goodwill is also an asset and why it is intangible means it cannot be touched, it cannot be seen, but it has got its own effect, that is called intangible asset. So goodwill is something like that. If you have got very good goodwill, then definitely you will be fetching more profit, that is called goodwill. If you do not have goodwill, you may have a good product, but if you do not let them know, let others know, let the customers know that it is how important it is to purchase these goods, then you have no goodwill. You have to advertise for that, and due to other reasons also goodwill will come. If it is a very good product, gradually people will know. लोक मैंने जो जानवे सी बेसी पैसा देकी भी किणवे कहीं ना तुम ना रे किणवे तुम ना उपर विश्वास अच्छी. ऑलराइट. ट्रेडमार्क ए पर्टिकुलर थिंग गोटे क्वेश्चन आसी मु देखुची इट इज ए नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस टू लिसन फ्रॉम यू सर. I still remember my KBRC days where you first lay foundation of our accounts. I am always grateful for being a student of you. Love you, sir. Devendra Mishra. Thank you, Devendra. Debu, actually popularly known as Debu. He was my student and he was a good student, good boy at least, I shall tell you. And now he is prospering. Thank you, Debu. I have laid the foundation stone of accountancy in many of my students, so they are my assets. Now we are there in trademark. Trademark means whenever there is a particular product and it is of high demand, it is in high demand, then we will make a trademark of it. If you do not go for the trademark, then people will not know whether it is your product or not. That's why we give trademark. You must have seen, suppose Tata McGraw-Hill is a good, I mean it's a very, what do you call it, reputed publisher. So he has got one logo. That logo itself is the trademark. So that is the trademark which cannot be used by others. Although they can produce those type of books which Tata McGraw-Hill is producing, but they cannot use that logo. That logo is the trademark. Similarly, in my childhood, there was Dalda. Even now it is available. Dalda. Dalda means it is, what do you call it? It is a type of oil, vegetable oil, which is used, which was used mostly. Now there are many competitors, but they had got that trademark with them. से trademark तांकर केम थिला गोटे एमती नडिया गछ गोटे देखा जाउथला, सेटा होची तांकर trademark. Similarly, मनर कल्याणी publishers, KP, they write, that is their trademark. So a trademark signifies that it is their product and nobody else can use that trademark. Then copyright. What is copyright? Copyright means when you are discovering something, you must have the copyright with you. Otherwise, others will produce the same thing and they will take the name. So it is better to have the copyright. It has to be registered. Copyright has to be registered. So copyright is also an asset. So long as it is registered in your name, the same product, same type of product others may produce, but they cannot give it to the market because you have got the copyright for them. In case of books, you must have seen, they write it like this. This is C is reserved, copyright reserved by authors or copyright Dr. Jayadev Sahu, like this. If I shall write a book, I shall write copyright reserved with Jayadev Sahu. So that is like this I can write. Okay.
that is called copyright. Then patents. Patents means the same thing but in case of goods. In case of goods and services also these patents are there. Like the latest invention is AI, artificial intelligence. So that artificial intelligence, one who is developing that, he must have his own patents. It must have been registered. Nobody else can take it away from him. That is called patents. Okay. So these are called intangible assets. Then number 4 we can write wasting assets. What are the wasting assets? Wasting assets are mines, oil reserves, then stone quarries, all these are examples of wasting assets. Why it is called wasting asset? Wasting asset means this will go on declining its value day after day after exploitation. Suppose take the case of a coal mine. Suppose a coal mine is having 1000 lakhs of tons of coal. If you are taking away 100 tons every day, then gradually after 7 years, after 10 years, after 20 years or 30 years, definitely there will be nil. So in this way, the asset which has been exploited and it becomes of zero value, that will be called wasting asset. For example, your mines. Then oil reserves also. Oil reserves, there is a limited quantity of oil in any particular place. It can be exhausted when you extract it. जो तुम बाहरी करदेव सब भर किसी रही ऑयल तमें से जीरो वैल्यू हो तो जीरो वैल्यू जोटा होम कह वेस्टिंग एसेट. सिमिलरली स्टोन क्वारीज पत्थर खଣି कौन जो जगह पत्थर बाहर सब दिन पर दिन से सब ट्रक ट्रक पत्थर पलि आसपर किसी समय पर तो खाली माटी बाहर ना तो से कहती वेस्टिंग एसेट. तो दीज आर कॉल्ड वेस्टिंग एसेट्स. ओके आम पढ़ले intangible assets, current assets, then fixed assets, then wasting assets, then fictitious assets. Fictitious assets रे आसीबो useless trademarks or patents, then debit balance of PL account, then discounts and rebates not yet written up. मु बुझेबी एटा कोन होची. What is useless trademark? Suppose आमर गोटे ट्रेडमार्क अच्छी गोटे बही करछे तार ट्रेडमार्क अच्छी से ट्रेडमार्क देखिकी लोक माने बहुत किणुचंती. दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क. कि जेतबे से बही आ चालीबनी लोक माने किणिबा को आग्रह प्रकाश करिवेनी सेटा हेगला यूजलेस. दैट ट्रेडमार्क बिकम्स यूजलेस. किंतु आमे जे पर्यंत ताकू कंटिन्यू करूचे आम बैलेंस शीट रे एसेट साइड रे देखै चालीचे सेटा तो एसेट साइड रहिबो ना. किंतु सेटा होची गोटे फिक्टिशियस एसेट्स. तार मीनिंग होची फिक्टिशियस एसेट्स those assets which are not really assets but shown in the asset side of a balance sheet are called fictitious assets. तमरो ना सपोज होची देवेंद्र कुमार मिश्र. तमे कौन करिवो आ गोटे जगह को जाइकरी तम ना को चेंज कर दो सेटा तुम फिक्टिशियस नेम. तमे कहबो ना मो ना होची हेमेंद्र कुमार मिश्र. तमने कौन हो गला चेंज हो गला तुम नाटा चेंज कर देला. वो कारण तुम चेंज करछे से अलग कथा. किंतु
तुम गोटे फिक्टिशियस नेम रे बंचुच सेटा हला फिक्टिशियस जोटा रियल नुह यू मस्ट हैव हार्ड द नेम ऑफ चार्ल्स शोभराज गोटे विराट ठक फ्रॉड से बहुत गुड़े कंट्री बहुत बहुत भूल करिछि सेथिमे से कौन करे तार नाटा को चेंज करी चले सेटा कहते फिक्टिशियस सो फिक्टिशियस एसेट भितर आसला यूजलेस ट्रेडमार्क्स एंड पेटेंट्स देन डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आमर जो वर्ष प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रे लॉस बाहरला सेटा को आम कौन करिया कथा फॉर द टाइम बिंग आम ताको कोठ रखिबा बैलेंस शीट रो एसेट साइड रे काहे बैलेंस शीट रो एसेट साइड रे रखिबा तार कारण होची यदि प्रॉफिट हैला आम प्रॉफिट टाको लायबिलिटी साइड रे रखुचे प्रॉफिट टाको काहे लायबिलिटी साइड रे रखुचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यदि प्रॉफिट देखेला टेक्निकलिटी को आम जीवानी आम खाली एतिकी जानिबा प्रॉफिट हैला माने से प्रॉफिटटा सांगे सांगे प्रोप्राइटर नहीं जिवा कथा जेहेतु प्रोप्राइटर को दिया हेनी प्रॉफिट हेची किंतु प्रोप्राइटर को दिया हेनी बा प्रोप्राइटर नेइनी से पर्यंत इट्स ए लायबिलिटी आम पेंगा सेटा गोटे लायबिलिटी आम प्रोप्राइटर रो धनटा को निजे रखिले सेति एटा को कहते लायबिलिटी बोली लायबिलिटी साइड रे रहउची सिमिलरली जदि लॉस होउची लॉस टाको आम जदि प्रॉफिट टाको रखिले लायबिलिटी साइड रे तार अपोजिट हैला को एसेट साइड तेणु आम कौन करछे ना डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हिच रेफर्स टू लॉस विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ग्रेजुअली सेटा कौन करा जाए ना राइट ऑफ हो जाए आम चेष्टा करवा जोटा यूजलेस जिनिस सेटा कौन करिया फोपाड़ी दवा बाहर को आस्ते 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 आम कर फोपाड़ी दवा तो सेतेबेले जाके एटा एठु जीव सिमिलर डिस्काउंट्स नॉट एट रिटन अप आम जो डिस्काउंट देइचे लोक मानकू आम बिजनेस सेटा गोटे लॉस सेटा कौन हुए सेटा भी राइट ऑफ हुए रिबेट्स एंड डिस्काउंट्स दीज आर आल्सो रिटन ऑफ अर्थ होची प्रति वर्ष किछि आम ताकू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रे पकईकि कमे प्रॉफिट टाको आसीबा तेणु से प्रॉफिट 5-10 वर्ष भितर जहाँ होइथिबो टिके कमे देखेबा बाकी तक आम एडजस्ट करदेबा या राइट ऑफ करिवारे तो एगुड़ा हला सब हला तमरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स ऑलराइट देन आउ कोन थिला तो आम आज जी डिस्कसन कले आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड आउ जदि किसी कहार डाउट रहा यू कैन पोस्ट इट एंड यू कैन राइट इट इन द कमेंट एंड इफ यू लाइक रियली लाइक देन गिव ए लाइक थैंक यू।